Hello everyone. Hope you will be fine and all will be fine in family too. Today we will discuss the new topic for NTSC, Advent of Europeans. That chapter related to history portion. In the class 8 maybe you have studied, but most of the points maybe you have forget. So today we will revise some important points for the NTSC. Firstly we will see the meaning of advent of Europeans. Advent का मतलब coming, Europeans का आना भारत में, and for which purpose they came in India. You know very well, mainly 4 European companies came in India, mainly Portuguese, Dutch East India Company, English East India Company, and Danish also came, and after that French came. So firstly we will discuss ki why these 4 European companies came in India, for which purpose they came in India. Before that, starting one by one all the European companies, firstly we will discuss why they came. Between we know 7 to 14th centuries, Arab traders trade between east and west. यानी कि Arab traders किसके बीच में, हमारा कौन से traders mainly व्यापार करते थे, ईस्ट और वेस्ट के बीच में Arab traders. और for which purpose? For spices, textile, clothes के लिए, sugar, indigo मतलब is used for dyeing the clothes, and saltpeter का क्या होता है, used for the making the gunpowder. These were the spices, textile, sugar, indigo, and that is in which century they were doing that trading activity, 7 to 14th centuries. And mainly 2 traders were having the monopoly over the trade in the Asia. Who were having the monopoly? Arab traders in Asia, or Italian traders were having the monopoly over the Europe trades. So यानी कि main were the 2 groups, Arab traders and the Italian traders. And how they were doing the trade between Persian Gulf to the Red Sea, यानी कि पर्शियन यानी कि सी टू पोर्ट तक जो वो बिजनेस करते थे, किसके थ्रू उनका जाता था, पर्शियन गल्फ एंड द रेड सी फ्रॉम इंडिया से. एशिया एंड यूरोप ट्रेड वाज टेकिंग प्लेस थ्रू, यानी कि एशिया और यूरोप कंट्रीज के बीच में जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज थी वाज टेकिंग प्लेस थ्रू द Constantinople, that was the place, the Roman capital, that was known for the gate of European trade. यानी कि ये एक मुख्य द्वार माना जाता था कि यहीं से यूरोप के लिए पूरा ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है, इसी गेट मतलब इसी प्लेस के थ्रू से. बट इन 1453 इट वाज कैप्चर्ड बाय ऑटोमन टर्क्स, यानी कि 1453 में जो कॉन्स्टेंटिनोपल था वो किसने कैप्चर कर लिया, ऑटोमन टर्क्स ने इन 1453, एंड कंट्रोल्ड, इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया. नाउ व्हाट दे हैपेंड, टर्क्स स्टार्टेड लेवाई मोर टैक्सेस ऑन गुड्स, यानी कि जो उस वे से रास्ते से जो गुड्स जा रहा था, अब उन्होंने उसके ऊपर क्या करना शुरू कर दिया, लेवाई मोर टैक्सेस, यानी कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेना शुरू कर दिया. तो नाउ ट्रेडर्स व्हाट दे फील कि नाउ दैट ट्रेड इज नॉट प्रॉफिटेबल. नाउ ट्रेडर्स वर थिंकिंग कि दैट ट्रेड इज नॉट प्रॉफिटेबल. तो व्हाट हैपेंड, दे स्टॉप्ड बिजनेस. फॉर दैट पर्पस दे वर थिंकिंग कि वी शुड डिस्कवर द सम new routes, some new sea routes should be discovered. So for that purpose Spain and Portuguese encourage sailing to sea to search sea route to India. यानी कि इनको स्पेन और पोर्चुगल ने किया कि कैसे हम इंडिया से ट्रेडिंग एक्टिविटीज करने के लिए कौन से रूट को डिस्कवर किया जाए. तो इसमें से सबसे पहले जो पोर्चुगल के थे, वास्को डी गामा ने फर्स्ट न्यू सी रूट डिस्कवर किया 1498 में. और स्पेन से जो सेलर आए उनका क्या नाम था, क्रिस्टोफर कोलंबस. ही वेंट टू वेस्टवर्ड साइड एंड ही डिक्लेयर्ड कि आई आल्सो डिस्कवर्ड द सी रूट फॉर इंडिया, बट एक्चुअली ही रीच टू अमेरिका. यानी कि उन्होंने इंडिया का सी रूट डिस्कवर करने की वजह उन्होंने क्या डिस्कवर कर दिया था, अमेरिका. तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हु डिस्कवर्ड द अमेरिका, क्रिस्टोफर कोलंबस, इन विच ईयर 1492, एंड ही वाज द सेलर ऑफ स्पेन. एंड पोर्चुगल से कौन था, वास्को डी गामा. ही डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498. एंड हाउ दे हैव विच मेथड्स, यानी कि साइंटिफिक मेथड्स आल्सो डिस्कवर्ड, दे आल्सो हेल्प. यानी कि विच टाइप ऑफ कंपास आल्सो डिस्कवर्ड दैट टाइम, गन पाउडर, मैप, एस्ट्रोलॉग, they also boost to the sailing activities.
Now we will discuss, we have taken the introductions ki why the trading, what were the relationship between the Asia and the Europe trade was taking place through which place, and why that place was not useful for that, why they have discovered the new sea route. So now we will discuss about the European companies, those who came in India for the mainly for which purpose they came, for the trading activities. Portuguese, Dutch, English, Danish and French. Firstly, we will discuss about the Portuguese. Portuguese, they came in India 17th May 1498. Or among them, which sailor came here? Vasco da Gama. Vasco da Gama. Firstly, where he is directly. First, हम mostly books में देखते हैं he reached to Calicut in India, where it is situated in Kerala. But directly सबसे पहले जहाँ इसने कदम रखा था सी रूट का जो डिस्कवर किया था, which what is the name of place? Kapadu. And अगर वैसे क्वेश्चन बनता है where he reached in the Kerala, Calicut. And who welcomed? यहाँ पर जब वास्को डी गामा यहाँ पहुंचा तो उसने उस समय वहां का किंग कौन था केरला का? जेमोरिन इसने इसको वेलकम किया यहाँ पर. और एक पोर्तुगीज के लिए ये है, दे केम फर्स्ट टू रीच इन इंडिया, यानी कि दे फर्स्ट टू रीच इन इंडिया एंड आफ्टर दैट दे लास्ट टू लिव इन इंडिया, यानी कि सबसे पहले आने वाले थे और सबसे बाद जाने वाले यूरोपियंस थे. नाउ हु we will discuss about only three main important governor in the Portuguese. First governor, Francisco de Almeida. Francisco de Almeida, he discovered that, he brought the new policy, blue water policy. क्यों इन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की? क्योंकि जिस रूट के थ्रू ये किया था, इंडियन ओशियन के थ्रू ये सी रूट उन्होंने डिस्कवर किया, तो उन्होंने क्या कहा कि ये इस पॉलिसी यानी कि इंडियन ओशन पर तो हमारा अधिकार होना चाहिए. तो दैट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट इज क्वेश्चन आस्क्ड कि हु ब्रॉट द ब्लू वाटर पॉलिसी? पोर्तुगीज गवर्नर. व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्तुगीज गवर्नर? फ्रांसिस्को डा अल्मेडा. सेकंड गवर्नर अल्फोंसो डी अल्बेरुक. अल्फोंसो डी अल्बेरुक कैप्चर गोवा. ये किस लिए फेमस है? Alfonso de Alberuc, that was second governor. He captured Goa from बीजापुर सुल्तान in 1510. क्यों फेमस है? क्योंकि जो गोवा को इन्होंने क्या बनाया था अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर. पोर्तुगीज ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कहाँ पर सेट किया था? गोवा में. और इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट काम किया था, बैन ऑन सती प्रैक्टिसेस इन इंडिया. परमानेंटली नहीं पर टेम्परेरी सती प्रैक्टिस के क्या था? जिस वीमेन का कोई हस्बैंड अगर डाइड हो गया, मर गया, तो उसके साथ उसको जिंदा जला दिया था. तो उस सिस्टम को कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई थी. और दे हैव फर्स्ट फैक्ट्री सेट अप इन 1502, यानी कि वेयर इन विच ईयर दे हैव सेट अप द फर्स्ट फैक्ट्री? इन 1502 AD एंड इन विच प्लेस? कोचीन. एंड थर्ड गवर्नर नीनो दा क्यूना कैप्चर दमन एंड दीव. इन्होंने किसके ऊपर कैप्चर किया था? दमन एंड दीव. और गोवा वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर. बट 1631 इन हुगली कर्नाटका, मुगल एम्परर शाहजहां ने इनको क्या किया? मतलब 1631 हुगली कर्नाटका, मुगल एम्परर शाहजहां डिफीटेड द पोर्तुगीज. तो वी हैव द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डच. Portuguese power witnessed a decline by the end of the 16th centuries, यानी कि 16th centuries तक आते आते जो पोर्तुगीज की पावर थी वो क्या होने लगी? डिक्लाइन, यानी कि पतन होने लगा पोर्तुगीज पावर का. They lost Hooghly in 1631. That is the most important point. They lost Hooghly in 1631 after being driven out by कासिम खान. किनके साथ उनका युद्ध हुआ था? कासिम खान. और कासिम खान कौन थे? ए मुगल नोबल ऑफ शाहजहां, यानी कि मुगल नोबल थे किसके? शाहजहां. तो इट मींस दैट टाइम इन 1631 हु इज रूलिंग इन इंडिया? शाहजहां, यानी कि मुगल रूलर, मुगल एम्परर सिचुएटेड. यानी कि दे लॉस्ट हुगली इन विच ईयर? 1631. और दैट टाइम हु वर रूलिंग? शाहजहां. इन 1661 द किंग जॉन फोर्थ, यानी कि हु वाज द पोर्तुगीज एम्परर दैट टाइम? किंग जॉन फोर्थ ऑफ Portugal to Charles II of England as dowry when he married the former sister Catherine. अब
ऊपर से क्या किया, जो किंग जॉन थे 1661 में उन्होंने अपनी बहन की दहेज में, यानी कि शादी में दहेज के रूप में पूरा गोवा ही उठाकर दे दिया। किसको दे दिया? उस समय कौन थे, किसके साथ उनकी शादी हुई थी? चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड। आफ्टर दैट द मराठास कैप्चर्ड सालसेट एंड बेसिंग इन 1739 इन द एंड दे वर लेफ्ट ओनली विद गोवा, दीव एंड दमन। यानी कि धीरे धीरे आते आते उनके जो इतने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, फैक्ट्रीज थे, वो धीरे धीरे, अब कभी कोई उनसे मुगल रूलर ले रहे हैं, कोई मराठा ले रहा, तो यानी कि मराठा ने उनके कौन कौन से प्लेसेस कैप्चर कर लिए थे 1739 में? सालसेट एंड बेसिंग। और लास्ट में आते आते एंड में कौन कौन से प्लेस बच गए थे उनके पास? गोवा, दीव एंड दमन, विच दे रिटेन टिल 1961। इसलिए मैंने फर्स्ट में डिस्कस कर दिया था कि पोर्तुगीज कौन थे, क्या थे सबसे, यानी कि दे रीच इन इंडिया फर्स्ट एंड दे लेफ्ट टू इंडिया, लिव टू इंडिया आफ्टर, यानी कि सबसे पहले इंडिया में आए और सबसे बाद में इंडिया को छोड़ कर गए। दैट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि टिल अप टू विच ईयर दे हैव टू रिटेन हियर? 1961 तक। नाउ पोर्तुगीज ये कैसे थे, आपने प्रिंटिंग प्रेस वाले चैप्टर में देखी, पोर्तुगीज ब्रिंग द प्रिंटिंग प्रेस ऑल्सो इन आवर कंट्री, और व्हेन द पोर्तुगीज केम इन आवर कंट्री they also introduce here which religion? Christianity they also bring with him. So it means Portuguese bring printing press and the Christianity also. So यानी कि our Portuguese chapter portion completed. Now we will discuss about the second European power. We have discussed about the Portuguese, now Dutch. Dutch. In which year Dutch East India Company established? 1602. Or in India, where they have set up the factories? In Masulipatanam, they have set up the factories in 1605. Or where is Masulipatanam situated? In Andhra Pradesh. And Pulicat, 1610, they have set up their factories, Tamil Nadu. And after that, Surat, 1616. Bhimilipatam, 1641, that is situated in Andhra Pradesh. And Karaikala, that is situated in Pondicherry. And Chinsura, West Bengal. Kasim Bazar also situated in West Bengal. Baranagor, it is situated also in West Bengal. And Balasore, Odisha. And Nagapatnam, Patam, all, यानी कि they have also established their factories here in approximately in which year? 1658. So among these factories, which were the main center? पुलिकट was the main center up to 1690, यानी कि 1619 तक डच का कौन सा प्लेस मेन इंपोर्टेंट कह सकते हैं हम यहाँ पर, कौन सा मेन इंपोर्टेंट प्लेस था? पुलिकट। और आफ्टर दैट इट वाज रिप्लेस बाय द नागापट्टम, और आफ्टर 1619 के बाद इसको किसने रिप्लेस कर दिया? नागापट्टम में। एंड द डच कंसीड टू इंग्लिश आफ्टर देयर डिफीट इन द बैटल ऑफ बेड्रा इन 1759, यानी कि कौन सी बैटल में वो इंग्लिश से हार गए थे? बेड्रा। और दैट वाज फॉट इन विच ईयर? 1759। और मोस्टली दे बिलोंग्स टू डच, वी कैन से दैट पोलैंड और नीदरलैंड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंग्लिश, हाउ दे केम एंड हाउ दे सेट अप देयर फैक्ट्रीज इन इंडिया। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड यूरोपियन पावर्स, यानी कि इंग्लिश, ब्रिटिशर्स। The British East India Company was started in 1600 AD, यानी कि 31st December 1600 AD. But what was the East India Company? EIC मतलब English East India Company was a private company, यानी कि that was run by the board of directors. And how that company got the permission? Through a royal charter passed by Queen Elizabeth in 1599. यानी क्वीन एलिजाबेथ ने थ्रू, यानी कि रॉयल फरमान जारी करके इनको परमिशन दी थी, यू कैन सेट अप दैट फैक्ट्री। तो नाउ द ब्रिटिश रीच इन इंडिया इन 1609, यानी कि इन 1600 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गोट द परमिशन कि दे कैन मेक इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन 1609 दे केम इन इंडिया थ्रू ए शिप, और दैट शिप इज नोन एज हेक्टर, HECTOR, यानी कि जिस शिप के थ्रू आए थे वो किस नाम से जाना जाता है? हेक्टर। which was captained by William Hawkins, यानी कि when Britishers came in India in 1609 through which ship? Hector, and that was captain, who was the captain? William Hawkins. In the court of Mughal King Jahangir, यानी कि in the Mughal King या Emperor
किसके समय में आए, किसके कोर्ट में, जहांगीर। बट इससे पहले एक बात और समझो, जैसे कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो ब्रिटिशर्स आए थे राल्फ फिच 1582 ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। अकबर के समय इन्होंने परमिशन सबसे पहले ली थी, वो मतलब लेटर वगैरह सबमिट करवा के गए थे कि वी वांट टू परमिशन। इन 1609 to 1611 विलियम हॉकिंस रिक्वेस्ट टू जहांगीर, give us permission, we want to establish factory in Surat. But Jahangir didn't grant the permission. Why? Because Portuguese were, what they were doing? They were doing the pressure on the Jahangir, don't give the permission. So after that what happened in 1612? Captain Middleton, यानी 1612 Captain Middleton आए, उनको Jahangir gave the permission that captain. Why? Because when Middleton came in India, he brought lot of gifts for the Jahangir. जो जहांगीर इससे खुश हो गए कि ब्रिटिश से कैप्टन आया तो मेरे लिए कितने सारे उपहार लाया, तो खुश होकर उन्होंने उसको परमिशन दे दी। बट ब्रिटिशर्स डोंट वांट टू स्टैब्लिश फैक्ट्री ओनली इन सूरत, खाली वो सूरत में स्टैब्लिश नहीं करना चाहते थे। दे वांट टू कैप्चर द 3 साइडेड ऑफ इंडिया, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ, बिकॉज दीज एरिया नियर बाय द सी and port they can easily establish. They don't want to establish their factories in North India because, and so where they want to establish their east, west and south. In 1613 in West India, where they have set up their factories in Surat, and where first factories they set up in Surat in 1613. In 1631 they set up the factories in South India, or in South India where they have set up their factories Masuli, Patna. In 1633 in Odisha, Hariharpura, Balasore, they set up their factories, यानी कि 3 sided they covered the India, and they gave the excessive tax, यानी कि they set up their factories before that, जैसे कोई उनको 10 rupees वहां पर पे कर रहा था, तो now Britishers what they were saying कि we will pay to here 100 rupees. तो now the emperor, rulers या kings were very happy कि ये तो हमें मतलब एक्सेस में टैक्स पे कर रहे हैं। तो for that purpose what happened in 1637 they gave to Madras also to the Britishers as a rent के फॉर्म में उनको 100 years के लिए दे दिया, लीज के लिए। और after that what happened in the Madras they set up the fort, they make one fort Saint George. They made now the emperor were asking why are you making these forts here? They were saying कि for the warehouse, यानी कि जो हम सामान का करेंगे, जो उसका प्रोडक्शन आएगा उसको हम रखने के लिए गोदाम बना रहे हैं, वेयर हाउस जहाँ पर सामान को रखा जाता है। पर मेनली फोर्ट किस पर्पज से बनाए जाते हैं? फॉर द डिफेंस पर्पज, यानी कि अपनी सुरक्षा के हिसाब से। तो उन्होंने मतलब ऐसे कह के ब्रिटिशर्स ने किसको बेवकूफ बना लिया? जो हमारे रूलर थे, जो हमारे लोकल रूलर्स थे उनको। तो यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ इंडिया के लिए उन्होंने अपना हेडक्वार्टर्स कौन सी जगह बनाया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। और फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर बनाया गया? मद्रास में। और इन विच ईयर? 1637। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस इन द पोर्तुगीज पैराग्राफ कि दे गोट द बॉम्बे एज इन द फॉर्म ऑफ डोरी, दहेज के रूप में उनको बॉम्बे मिल चुका था, क्योंकि जो पोर्तुगीज रूलर था, एम्परर था, उन्होंने अपनी बहन के डोरी के रूप में कैथरीन के साथ क्या दहेज में दे दिया? साथ में बॉम्बे। तो यहाँ के बॉम्बे में भी इन्होंने अपना हेडक्वार्टर स्टैब्लिश किया, वो किसके लिए? वेस्ट इंडिया के लिए। नाउ they want to capture the Bengal. Why? Because that time Bengal was very fertile area, land was very fertile, or because that was situated on the between two rivers, Brahmaputra and Ganga basin. So that area was very fertile for many this type of crops: tea, opium, we can say that अफीम, and indigo. ओपियम का मतलब अफीम की अगर हम किसी को खिला देते हैं उसकी लत पड़ जाती है, मतलब उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, वो उसके बाद अपना पावर को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते। वो ब्रिटिशर्स चाहते भी ये थे कि सभी लोग अपनी पावर को क्या कर दें? खत्म कर दें, ताकि वो उनके साथ लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं रहे। इंडिगो क्या था? एक ब्लू कलर डाई थी जो हम मेनली क्लोथ्स को डाई करने के लिए यूज में लेते थे। मुगल रूलर और दैट टाइम हु वर रूलिंग इन द बंगाल? That time who were
doing the ruler here in the Mughal ruler Aurangzeb. And that time Aurangzeb was very powerful. And the Britishers were not having the power कि they can capture that area or they can attack that area. So now Aurangzeb was very ambitious. What he was thinking, उसको लग रहा था कि यहाँ सभी जगह से सभी को टैक्स अच्छा मिल रहा है, तो बंगाल में क्यों नहीं है. उसने आगे से बढ़ के खुद परमिशन दी, ब्रिटिश यू कम हियर and do the trading activities. In 1661 he gave the permission to the Britishers, you come here and do the trading activities. So in 1619 they have set up the first factory at Bengal. Yani ki in the Bengal, in which year they have set up the factories? In 1690. Sutanuti. In which village? Sutanuti. And nearby two villages also there, Govindpur and Kalikata. After that these three villages came together. Yani ki Sutanuti and Govindpur and Kalikata, ये तीनों विलेज मिल गए. इन तीनों से मिलकर 1696 में क्या फॉर्म हुआ? बिकेम कलकत्ता. यानी कि इन तीनों विलेज को मिलाकर क्या बना दिया गया? कलकत्ता. और इन विच ईयर? 1696. और वेयर दे हैव सेट अप द फोर्ट विलियम. और इस फोर्ट विलियम जो यहाँ पर इन्होंने सेटअप किया, ये किसका हेडक्वार्टर बना दे? यहाँ पर ईस्ट इंडिया. वी हैव सीन दे मेड 3 फोर्ट. साउथ इंडिया हेडक्वार्टर्स फोर्ट सेंट जॉर्ज, और इन द वेस्ट इंडिया फोर्ट बॉम्बे, और इन द ईस्ट इंडिया में दे हैव मेड द फोर्ट विलियम. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट. वी हैव डिस्कस हाउ इन बंगाल Britishers got the right for the trading purpose. Now they were waiting for the Aurangzeb, when Aurangzeb will die. So here given Aurangzeb died in 1707. So after that what happened? Mughal emperor, after the Aurangzeb, most of the Mughal ruler was very weak. They couldn't hold the position in the proper way. So now they denied for tax. Now they will, the Britishers, now they were saying कि now we will not pay the tax for that purpose. So now British यानी Mughal ruler, what they were saying, if you will not pay the tax, so what we will do? We will invade you. We will attack on you. So now when rulers यानी कि Mughal rulers went to Fort William, यानी कि Fort William, when they what they have seen there कि that Fort William that is occupied with the all the filled with the weapons. की मतलब क्या है? ब्रिटिशर्स ने पूरी तैयारी कर रखी है. जो फोर्ट विलियम है वो किससे भरा हुआ है? वेपन से. तो नाउ रूलर्स वर वेरी एंग्री कि आपने हमारे साथ क्या किया? गद्दारी की है. आपने फोर्ट किस लिए पर्पज से बना रहे थे कि हम अपना वेयर हाउस के रूप में यूज कर रहे हैं, कारखाने के रूप में यूज कर रहे हैं, पर आपने तो यहाँ पर क्या कर रखा है? पूरा वेपन से इसको भर रखा है. तो नाउ ब्रिटिशर्स गेव 2 ऑप्शन. या तो आप हमारे साथ सामने सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण, या आप हमारे साथ बैटल करो, वॉर लड़ो. तो नाउ तो व्हाट हैपेंड? मुगल रूलर व्हाट दे हैव डन? दे सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स. तो इन 1717 Farrukhsiyar was the Mughal ruler, but he was not very strong and famous ruler. He gave the permission tax free trade. Now he gave the permission to the Britishers. Now you can do the tax free trade here. So now what happened? Mughal Empire didn't get any tax. यानी कि मुगल एम्पायर को टैक्स मिलना बंद हो गया. जब उनको टैक्स मिलना बंद हो गया तो उन्होंने क्या किया? उनके जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे सबको क्या हुआ? पेंशन उनको रुपीस देना बंद कर दिया, उनकी सैलरी देना बंद कर दिया. इसके पीछे लॉजिक है. देखो 1609 में ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया, कैप्टन विलियम हॉकिंस के कैप्टनशिप में आए थे. 1613 दे सेट अप द फर्स्ट फैक्ट्रीज in 1613 and in up to 1717 they have to pay the tax. यानी कि 1717 तक उन्होंने टैक्स पे किया यहाँ पर. तो अब जो बड़े बड़े मुगल रूलर के जो अधिकारी थे उन्होंने अब अपने आप को फ्री कर लिया, स्वतंत्र कर लिया, अपने अपने एरिया ले लिए. चिंगज़ खान, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? निजामुल मुल्क, उसने कौन सा एरिया ले लिया? हैदराबाद. मतलब मुगल रूलर से सेपरेट हो गया अलग. मुर्शिद कुली खान, he has taken Bengal. Bengal was very famous. And सादत खान ने कौन सा एरिया ले लिया? अवध, जो किस नाम से जाना जाता है? लखनऊ. यानी कि बड़े बड़े अधिकारियों ने पर्टिकुलर एरिया को अपने पास ले लिया. यानी कि मुगल रूलर, तो
और ब्रिटिशर्स की मेन चाल भी यही था कि पूरे इंडिया को क्या करना, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेटेड करना, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। तो नाउ दे स्टार्टेड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। अब धीरे धीरे मुगल एम्पायर क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगा, सब अपने आप को फ्री करने लगे, स्वतंत्र करने लगे। नाउ इन बंगाल, who were ruling that time? Who was the Nawab of the Bengal? Alivardi Khan. When Alivardi Khan died, after that who became the Nawab here? Sirajuddaulah. Sirajuddaulah was the last Nawab of Bengal. यानी कि बंगाल का नवाब कौन था? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के मरने के बाद कौन बना लास्ट, हम उसको लास्ट नवाब भी बोल सकते बंगाल का, सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला ने क्या सुन लिया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि वी विल अटैक ऑन सिराजुद्दौला। जैसे ब्रिटिशर्स अटैक करते उससे पहले ही सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक कर दिया और उनके 146 इंग्लिश के जो सोल्जर्स थे उनको पकड़कर प्रिजन कर दिया, यानी कि और जो जिस प्रिजन यानी कि जो फोर्ट विलियम था उसके अंदर एक छोटे से चैम्बर में रखा उसके अंदर, और चैम्बर का मतलब क्या था, वहां पूरा सफोकेशन से उनकी डेथ हो गई। तो यानी कि इंग्लिश प्रिजनर्स डाई, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 146 इंग्लिश प्रिजनर जिनको बंदी बनाकर रखा गया था, जिन सोल्जर्स को इंग्लिश के कितने मारे गए होंगे, 146 अप्रोक्सीमेटली। तो इंडियन हिस्ट्री में ये इंसिडेंट किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक होल ट्रेजेडी इन 1756। यानी कि ये इंसिडेंट किस नाम से जाना गया, ब्लैक होल ट्रेजेडी। दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आफ्टर दैट, यानी कि इन द लास्ट, नाउ सिराजुद्दौला वाज रूलिंग इन द बंगाल। नाउ ब्रिटिशर्स वांट्स टू टेक रिवेंज। अब ब्रिटिशर्स खूब गुस्सा हो गए, अब उससे बदला लेना चाहते थे। नाउ मीर जाफर, कौन था मीर जाफर, कमांडर इन चीफ, यानी कि जो सिराजुद्दौला का क्या थे, सेनापति। अब मीर जाफर ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, सहयोग दिया। क्यों, ब्रिटिशर्स ने उसको क्या प्रॉमिस किया कि सिराजुद्दौला के बाद हम आपको नवाब बना देंगे। इस पर्पज से मीर जाफर ने क्या किया, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। इसीलिए जो हमारी इंडियन हिस्ट्री में एक बैटल हुई जिसको हम जानते हैं बैटल ऑफ प्लासी, जो कौन से ईयर में फोर्ट हुई, 1757 में। और ब्रिटिशर्स की तरफ से जो मेन हेड था इनका, रॉबर्ट क्लाइव, अंडर द लीडरशिप ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल की तरफ से किसने सपोर्ट किया इनको, मीर जाफर। तो इट मीन्स हु वॉन दिस बैटल, ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स वॉन कर गए, तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, जो भी बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वी विल कंट्रोल, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, अब जो भी शासन प्रबंध करना है वी विल डू, हम करेंगे अब इसको। लेकिन इसी समय मुगल एम्परर कौन था, शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड मुगल एम्परर। उसने कहा देखो हम अलग अलग हो गए, डिसइंटीग्रेटेड हो गए, कोई अवध में डिवाइड हो गया, कोई हैदराबाद में, तो ब्रिटिशर्स उसका फायदा उठा चुके हैं। और ब्रिटिशर्स को इससे बेनिफिट हो रहा था, देखो हमारी तो छोटी सी आर्मी है, हम तो यहाँ ट्रेडिंग पर्पज से आए थे, लेकिन ट्रेडिंग के साथ साथ हमने तो धीरे धीरे इन एरिया पर भी कैप्चर करना शुरू कर दिया है कि वी आर वेरी पावरफुल। तो उसके बाद क्या हुआ, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड और मीर कासिम फ्रॉम बंगाल एंड शुजाउद्दौला फ्रॉम अवध, 1765 दे केम टूगेदर। अभी तीनों मिलकर आए और उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ एक लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई किस नाम से फेमस हुई, बैटल ऑफ बक्सर। इन विच ईयर बैटल ऑफ बक्सर फॉर 1764। बैटल ऑफ प्लासी से तो क्या हुआ, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पर कब्जा कर लिया, और बैटल ऑफ बक्सर से क्या हुआ, फाइनेंशियल कैप्चर कर लिया। अब खाली एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं देखेंगे हम यहाँ का, बंगाल का साथ के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ क्या और देखेंगे, फाइनेंशियल सिस्टम और देखेंगे। इसीलिए वहां पर क्या बोला गया, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस फाइनेंशियल, ड्यूल गवर्नमेंट, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल ब्रिटिशर्स देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो जुडिशरी सिस्टम है वो क्या देखेगा, लोकल रूलर। तो यहीं पर एक ट्रीटी हुई जिसको हम बोलते हैं 1765 में, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। किस किस के बीच में हुई, शाह आलम सेकंड और रॉबर्ट क्लाइव। अब उन्होंने, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पूरा सिस्टम ले लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी, फाइनेंशियल सिस्टम भी। अब ये जो शाह आलम के बड़े बड़े जो अधिकारी थे या जो रूलर थे उनको 1.5 लाख के मतलब 1.25 लाख के आसपास पेंशन देकर भेज दिया कि हम आपकी जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उनका ध्यान रखेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, पर जो भी पूरा शासन प्रबंध है उसका देख रेख है, मेंटेन करना है, उसको कैसे एडजस्ट करना है, वी विल डू। इसी के साथ साथ
1765 में दीवानी राइट भी मिला इनको, इलाहाबाद संधि से, जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था 1765, दे गोट द दीवानी राइट, यानी कि दे कैन कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम, कहाँ कहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया। बिट पहले तो रेवेन्यू खुद दे रहे थे टैक्स में, नाउ दे वर कलेक्टिंग द रेवेन्यू फ्रॉम द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, यानी कि फ्रॉम फॉर दीज एरियाज दे वर कलेक्टिंग द revenue also. So now we have discussed how the Britishers came in our country for the trading purpose. After that, how they control the most of the parts of our area, slowly and gradually. Now we will discuss the next topic.